This video has been made specially for getting this software recharged. When you subscribe to Vanijya, you have to make payment for its subscription. So in this video, I'll guide you step by step how to make that payment of subscription. Simple, when you log into Vanijya, you will find this screen. When you go to bottom of the screen, you will find this option, click to recharge. Simple, you have to click on this link. When you click on this link, you will find this box on the left side with a button renew plan. So you have to click on this renew plan button. Now another box appears. Here you have to select this checkbox. You have to select this checkbox. If you have any promo code, if you have any discount code offer from our company team, you can click on this link and put the promo code here, right? You can put the promo code here. Say for example, I put a promo code and I apply. So now it's showing promo code applied successfully, and you can see this amount has changed. Earlier it was this 5,000, now it has changed with the discount amount. Simple. Now it's final thing, you have to click to pay this button. This is a basic subscription of school showing here. Now if you are having more than 250 students, if you are having more than 250 students, the charges per student will be 8 rupees per annum. 8 रुपए आपसे चार्ज किया जाएगा पूरे साल का एडिशनल 250 स्टूडेंट्स के बाद. तो आपको 8 से जो भी आपके स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है 250 से, उसको आपको इनटू करना है और उतना फंड आप और ऐड कर देंगे. उसके लिए सिंपल प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं. ऐड मोर एड ऑन्स, यहाँ पे बटन है, आप इस बटन को क्लिक करेंगे. यू विल क्लिक ऑन दिस बटन. नाउ स्क्रॉल डाउन एंड यू विल फाइंड दिस ऐड फंड्स ऑप्शन. आपको ऐड फंड्स का ऑप्शन मिलेगा, आप क्लिक कर देंगे ऐड ऑन प्लान. से you have 100 more students, so 8 into 100 will be 800, right? So I'll put this 800 and this is here. Again I'll click this button, click to pay. Now you can see this additional charge is added and the GST over it is also added here. So now this becomes the total amount. This calculation part of additional student is very simple. I'll explain you again. Simple, say if you have 500 students, what I'll do is we'll take 500, we'll subtract 250 from it. So now because 250 is already included in the plan, now 250 is remaining, you will just multiply it by 8. That is all what you have to do. Rest everything the software will do. इसके अलावा और सारी चीज सॉफ्टवेयर खुद से कर लेगा. आपको इसमें जो जीएसटी ऐड होगा उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, और आप ये ऐड फंड्स में जैसे मैंने आपको बताया था उसके अंदर ऐड कर देंगे. एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूं. जैसे मैं इसको रिमूव करता हूं, आई विल अगेन कम टू ऐड मोर. हियर दिस इज ऐड फंड्स, विल क्लिक ऑन दिस. अब ये कह रहा है कि इनपुट अमाउंट, आपको अमाउंट डालना है. अभी हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था 2000 फॉर एडिशनल 250 स्टूडेंट्स. सी इट्स शोइंग. नाउ यू हैव टू क्लिक टू पे. वन मोर थिंग, जैसे ही आप इसके अंदर 2000 इनपुट करेंगे उसके बाद आप यहीं कहीं पे भी इस इंटरफेस पे एक बार क्लिक करेंगे, बिकॉज क्या उसके बाद ये बटन आपका आ जाएगा. इस बटन पे आप क्लिक करेंगे and see the basic plan is there and 2000 which we calculated just now is there and it is total. Now final thing, confirm order. You will click on confirm order. आप confirm order पे क्लिक करोगे और यहाँ पे बिलिंग एड्रेस में जो भी आपके कंपलसरी रेड कलर के जो मार्क्स आ रहे हैं इनको आप फिल कर दोगे, जिसके अंदर मोस्टली आपका सिटी वेकेंट आएगा. तो सिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सिटी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सिटी यहाँ पे आप इनपुट कर देंगे, राइट. इन केस सिटी में आपको दिक्कत आती है, सिटी अपेयर नहीं हो रही है, तो एक बार आप स्टेट को फिर से रिफ्रेश कर देंगे. यू विल सेलेक्ट द स्टेट एंड रीसेलेक्टेड, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन. ऑनलाइन पे क्लिक करने पे इट विल टेक यू टू द पेमेंट गेटवे विद ऑल द ऑप्शंस, card, credit card, net banking, UPI, wallet, everything. You can pay through that. This is a one option. If you don't want to pay using your card or net banking immediately,
आप एक काम कर सकते हो, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, चेक ऑब्लिक एनईएफटी। इसमें आपको यहाँ नीचे दिखा रहा है कि क्या बैंक अकाउंट नंबर है, किसके नाम में है। तो इस बैंक अकाउंट और इस नाम में आपको एनईएफटी या एमपीएस करना है, चाहे वो आप अपने बैंकिंग पैनल पे जाके ऑनलाइन करिए, चाहे आप बैंक में फिजिकली जाके उसको करवाइए। वंस यू हैव डन दिस, आपको यहाँ आके जो बैंक का नाम और आपका जो यूटीआर नंबर है, जो आपको आप जब एनईएफटी करेंगे तो मिलेगा, और किस बैंक के थ्रू आपने किया है वो, और उसकी डेट, ये तीनों चीजें आपको यहाँ इनपुट करके इसको सबमिट करना है। तो दीज थिंग्स यू विल सबमिट है and it will be received by our accounts team at backend, and that accounts team will verify with the bank, and as soon as it is appearing, normally it takes 24 hours because there is a long queue. तो accounts team takes up it in evening. तो accounts team उसको देख के verify कर देगी, verify करके उसको backend से activate कर देगी. When it is activated from backend, उसके बाद आपको किस तरह का दिखेगा जिससे कि आपको ये लगे कंफर्म हो गया है आपका रिचार्ज, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सिंपल, यहाँ पे आपको दिखने लगा योर रिचार्ज वैलिड टिल, आपको अपनी वैलिडिटी दिखने लगेगी यहाँ पे, और दिस मीन्स योर रिचार्ज हैज बीन डन। नाउ कम्स यू वांट द बिल और इनवॉइस। सिंपल, आप यहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं ये लाइंस, आप लाइंस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सारे जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं इसके अंदर आपको ये प्रिंट बिल दिखेगा। प्रिंट बिल जो भी कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन होगी उस केस में दिखेगा, एंड इट समटाइम्स इट माइट टेक फ्यू आवर्स टू अपीयर, बिकॉज इवन इफ यू आर डूइंग ऑनलाइन पेमेंट तब भी तो दे हैव टू वेरीफाई दैट पेमेंट रिसीव्ड, दे हैव टू जस्ट मेक अ टिक। तो जैसे ही वो टिक होता है वैसे ही आपका बिल जनरेट हो जाता है, तो अपॉन कंफर्मेशन है वो भी, ऑटोमेटेड वाला भी। तो आपका ये बिल यहाँ से मिलेगा, आप बिल पे क्लिक करेंगे और आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें अकाउंट्स का है, आप अकाउंट्स में अगर इस पेमेंट की एंट्री करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक पे वो सीधा आपको एक्सपेंस की एंट्री पे ले जाएगा और वहां आपको एक क्लिक पे एंट्री हो जाएगी। सो इस तरीके से आप इसके अंदर रिचार्ज इजीली कर सकते हैं और आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रिचार्ज करने के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।